So substitution reaction आ गए सब लोग? अरे 13 ही लोग हैं. Where are the people? तो जरा मैसेज करो सबको, जगाओ. 13 मतलब actually 11 students are there. Where are the 8 students? कार्तिक किधर है? कार्तिक नहीं आया अभी तक. सुरीन, कार्तिक और कौन नहीं है? So in a substitution reaction, we discuss SN1 and SN2 reactions. We discuss, right? In an elimination reaction, we will be discussing now. Basically, we know E1 and E2 are the main concept. Okay, there is one more E1 CV, but we are not going to discuss it here. So let us try to understand first basic mechanism. I want to explain you for the E1 mechanism. Let us understand and distinguish between E1 and E2 first. Then I will give you example. And then there is a rule called as a Sedgwick rule. Then we have a E2 mechanism. Okay, E1 and E2 mechanism. Always थोड़ा रिवाइज करते रहना. Basically, elimination, which we are discussing here, are nothing but beta elimination or alpha beta elimination or just beta elimination. Now, what do you mean by beta elimination reaction? So the reaction in which beta hydrogen atom is replaced. Beta hydrogen atom is removed along with the functional. Okay. So what are the key points of elimination reaction? I will give an example and mechanism also. First one, it is a two-step mechanism. Two steps mechanism. Okay, plus if you see some of the characteristic, it has some resemblance with that of the SN1 reaction. Okay, first step is slowest step. First step is slowest step, in which there is a formation of carbocation. Okay, slowest step where X minus, matlab halogen, leaves. Okay, this is slow step है तो ये क्या होगा? Rate determining step होगा. Third point, in a second step, which is a fast step, base attracts beta H plus ion and gives alkene as the product. Okay.
in second step, which is fast step, base attacks on beta H plus. Okay, and gives alkene as product. अच्छा बाय द वे ये अपने 12th स्टैंडर्ड में इतना डिटेल में नहीं. ओके, द इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकैटायन. Intermediate form is carbocation. Okay. Here, generally, this reaction is taking place in presence of weak base. Okay. Generally, taking place in presence of weak base. And the last one, for alkyl halides, order of reactivity is tertiary alkyl halide is greater than secondary than primary. Okay, tertiary alkyl halide is greater than secondary than primary. Okay, don't worry, I will give you an example so that you will understand it. हम लोग एक example mechanism भी देखेंगे. तो E2 के पहले मैं distinguishing point मतलब points बताता हूँ. इसमें first point ये है, it is a one step mechanism. One step mechanism. याद करो SN2. Okay. Then there is no formation of carbocation. There is no formation of carbocation here. Second point है, this is a very important point. Reaction passes through transition state in which anti-periplanar conformation is achieved or is must. Anti-periplanar conformation is must. Okay. And here transition state also has 5 atoms which are in one plate. Okay. Transition state has 5 atoms in one plate.
in one plane. Okay. Third one. No formation of carbocation. Here there is no formation of carbocation. Fourth one is first step is our matlab that's whatever the attack of base is there, that only the rate determining step. Attack of base on beta hydrogen is rate determining step. What are the reagents? Reagents are generally strong base. Generally strong base अगर रहेगा then it is what? एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. R minus carbon ion, then NH2 minus, then RO minus alkoxide ion, then OH minus. No. Okay, OH minus. ठीक है? So these cause E2 mechanism. Next one, to prepare alkene. To prepare alkene, E2 mechanism is favorable. Please write down this part. Okay, I'll get example, don't worry. First of all, you write down these things. Here the order of reactivity for alkyl halide is, the order is same. Tertiary is greater than secondary is greater than primary. So it depends on the type of reagent we have. If you have done, please tell me. Done. बोलना. Done, sir. कौन absent है? तीन लोग कौन absent? सुरीन, अवनी आणि कोण absent? सुरीनचं काय आलं?
ओके, सो आर्यन जी हो गया आपका लिख के? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा रिएक्शन देख, पहले मतलब मैकेनिज्म देख कि कैसे मैकेनिज्म होता है. ओके, देन वी विल अप्लाई टू द एग्जांपल्स. मैकेनिज्म. सो E1 का मैकेनिज्म क्या होगा? So I'm taking example of tertiary butyl halide. Tertiary butyl halide. Okay. It is attacked by weak base. So here I'm writing weak base. So first step में there is no presence of weak base. ये तुम लोग का RDS है, rate determining step. तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. Therefore SN1 और E1 ये पैरेलल चलता है. SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन क्या चलता है? पैरेलल चलता है. So this is delta minus, this is delta plus. ये हो गया तुम लोग का ट्रांजिशन स्टेट 1. Now this Br minus will move away and there is a formation of tertiary butyl carbocation. Okay, plus Br minus. ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में क्या होगा? बेस जो वीक बेस है वो इस पे अटैक करेगा. So base. So here I'm writing B minus base and it takes away beta proton. तो ये अल्फा कार्बन है ना, तो all these are beta hydrogen atoms. Okay, समझ में आया? So any one proton, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2HS, तो ये बॉन्ड इधर आ गया, so that ये H plus इसके साथ गया. So we have a product. हाँ, यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ऐसे बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट CH3 CH3 CH2. तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है H, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है? वापस बंद है. दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट 2 and the ultimate product is alkene. CH2 plus Hb. Okay, write down this mechanism. This is step 1 mechanism and this is step 2 mechanism. So those who are in a 12th standard, मतलब जो सिर्फ बोर्ड्स देने वाले, if you are interested, then only you write this mechanism. E1 is not a good method for the preparation of alkene. Okay, E1 is not a good method for the preparation of alkene, because if you see now, there is the formation of planar carbocation. So वो base can act as a nucleophile. So whenever there is a comparison, अगर वहां पे समझो स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया मैंने, तो स्ट्रॉन्ग बेस जनरली यूज टू रिमूव प्रोटॉन, बट वीक बेस अगर रहेगा ना, तो तुम लोग को क्या मतलब वो स्पेशल कंडीशंस होते हैं. सो यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन से स्पेशल कंडीशंस रहेंगे वो. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस एग्जांपल्स आल्सो. सो
यहाँ पे नोट लिखना. What are you going to write here? E1 is not a good mechanism for the preparation of alkene. So in short मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग को अल्कीन प्रिपेयर करना है तो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है. बेस जो है ना वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है. इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है अगर इफ यू वांट अल्कीन. ओके, चलो अभी लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ E1. E2 mechanism of Gamba. Let us understand E2 mechanism. What do you mean by anti-periplanar structure? ये मैं बता देता हूँ. Now in this case, suppose R CH2 ऐसा है. Now here I am using strong base. Okay, so let us consider strong base is alkoxide ion. Alkoxide ion. Alkoxide ion, which is nothing but strong base. Now when it attacks, ये हो गया अपना RDS, rate determining step. That means this is a slow step. See what is happening. This RO minus will attack on this beta. ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ये क्या है? बीटा कार्बन. तो ये RO माइनस बीटा कार्बन पे अटैक करेगा. तो we have one transition state. देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे रहेगा? R हो गया CH, ये H हो गया, ये RO माइनस अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पे. ठीक है, देन वी हैव अ CH2 और ये X जो है वो अपोजिट होना चाहिए. तो ये बॉन्ड ये H पे अटैक कर रहा है, सो दैट ये बॉन्ड ये दो कार्बन कार्बन के बीच में जा रहा है और ये X माइनस यहाँ पे लीव कर रहा है. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इससे जो मुझे मिला सेम है. सी व्हाट द स्ट्रक्चर है, RCH, ये हो गया H, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ये क्या हो रहा है? OR माइनस, ये बॉन्ड बन रहा है. दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग. ओके, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज. नाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग and this bond is breaking. This is called as transition state. So the attack of base and the halogen which is leaving should be on the opposite side, but all are in a one plane. देखो पांच एटम मैंने बोले थे. Which are those 5 atoms? So देखो ऑक्सीजन है 1, हाइड्रोजन हो गया 2nd, कार्बन हो गया 3rd, this carbon is 4th, this halogen is 5. So these 5 atoms are in one plane. ये bond क्या बन रहा है? This is bond formation, this is bond breaking, this is bond formation, this is bond breaking. Now as soon as मतलब इसके आगे वाला ट्रांजिशन स्टेट ये बन गया अपना 5 कार्बन एटम्स इन वन प्लेन, एंटी पेरिप्लेनार स्ट्रक्चर. एंटी पेरिप्लेनार सबको समझ में आया? दिस इज नथिंग बट एंटी पेरिप्लेनार. एंटी पेरिप्लेनार मतलब एक ही प्लेन में बट लिविंग एटम एंड अटैकिंग एटम्स आर ऑन अपोजिट साइड. ओके, सो ये हो गया एंटी पेरिप्लेनार कॉन्फॉर्मेशन. ठीक है, so what will be the product? RCH double bond CH2 plus X minus plus R
dash, it must be R dash, na? R dash, ये भी R dash होना चाहिए. We just want to distinguish. We're getting what? R dash OH. समझ में आएगी? Everybody got this point? Please write down this. चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? हेलो? Yes, sir. Okay, good. Now let us go for the one rule called as Set-Zeph rule. अच्छा, ये अभी सबको है 11th standard, मतलब 12th standard as well as entrance. Set-Zeph rule. ओके, Set-Zeph rule क्या है पहले हम लोग वो लिखते हैं. क्या है रूल? पढ़ो जरा. What is the rule? According to this rule, the dehydrohalogenation of an alkyl halide results preferentially in the production of more alkylated alkenes, that is more stable alkene. Whether ये dehydrohalogenation हो, same way I can apply for the dehydration of alcohols. Okay, so during the elimination reaction, the alkene form must be more substituted. Okay, तो ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ. क्या होगा यहाँ पे? Alkene form must be what? So here I am writing during elimination reaction. Elimination reaction. More substituted alkene. Substituted alkene is obtained as a major product. Major product. Okay, so just remember this rule. Now let us understand few examples. हम लोग कुछ examples लें. Questions. Number 1, what happened when following alkyl halide halides are boiled with. अच्छा, boiled के लिए और एक word यूज करते हैं, और refluxed with. Boiled और reflux. Boiled में क्या होता है, जो वेपर्स बनते हैं वो एटमॉस्फेयर में मर्ज हो जाते हैं. रिफ्लक्स में क्या होता है, जो वेपर्स बनते हैं उसको हम लोग कंडेंस करते हैं. ओके, सो इन बोथ द केसेस वी आर हीटिंग. Boiled with alcoholic KOH. Alcoholic KOH or NaOH. What do you mean by alcoholic KOH and NaOH? Solution of
KOH in alcohol. Solution of, so whenever there is a term alcoholic KOH, always remember that there will be elimination reaction. There will be what? Elimination reaction. Always remember that. Please note this. For 12th standard, for CET level, even up to JEE mains level, ये सही है. तो यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ. नोट. What? Alkyl halide when heated with alcoholic KOH or NaOH, alcoholic KOH, और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं इथेनॉलिक KOH और KOH plus C2H5OH. Okay, what will happen? Alkene is obtained as major product. As major मतलब almost 99% यही होता है. As major product. ओके चलो देखो अभी रिएक्शन देखो. मैं अल्काइल हैलाइड्स के नाम लिखता हूँ. फर्स्ट वन है इथाइल आयोडाइड, सेकंड वन है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, थर्ड वन है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, फोर्थ वन है, this is first one, tertiary butyl iodide, okay and so on. यहाँ पे और एक चीज मैं बताना भूल गया. अगर वहां पे इवन मैकेनिज्म है, इवन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट. ये ना दिमाग में फिट कर देना और राइट डाउन समवेयर. whenever there is a formation of carbocation, rearrangement reaction possible है. Why there is a rearrangement reaction? To form more stable carbocation. Okay, Kulkarni, good morning. Hello. चलो जरा अपना अपना वीडियो ऑन करो सब लोग. सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो. एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, तुम लोग फिर खुद से कर सकते हो उसको. हाँ, पर अभी मुझे ये भी बताओ कि SN1 किस में होगा, सॉरी E1 किस में होगा. E1 और E2 आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि वेदर इट विल गिव यू स्टेबल कार्बोकैटायन और नॉट. जस्ट चेक वही करना. जैसे अभी इथाइल आयोडाइड में E2 मैकेनिज्म पॉसिबल है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड में E2 मैकेनिज्म पॉसिबल है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में E2 और E1 दोनों पॉसिबल है. Now that depends on the type of reagent हम लोग यूज कर रहे हैं. सेम वे टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड E1 मैकेनिज्म पॉसिबल. ओके, सो यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ इथाइल आयोडाइड. सो इथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्या है? CH3. तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH2H, है ना. उसके बाद आ जाएगा CH2, क्या था? इथाइल आयोडाइड. सो इथाइल आयोडाइड, अल्कोहलिक KOH, एरो पे रहेगा अल्कोहल, अल्कोहल, इथेनॉल, जो भी कुछ है, और हीट. सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या बताया मैंने? ये बॉन्ड इधर आ गया. ध्यान से देखना, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, अल्फा बीटा, राइट. ये बॉन्ड इधर आ गया, ये I माइनस चला गया. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस
I माइनस और Ki H प्लस प्लस एंड OH माइनस, क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। किसके साथ है ये? प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। Write down the names of all organic compounds. Remember this thing. Okay. Second example क्या बताया था मैंने? N-propyl bromide. चलो अभी तुम लोग करो. Try it. Once again I am repeating. जो लोग absent है उनके लिए, जो लोग recording लेकर देखेंगे वो लोग. You are going to send me daily night. मुझे तुम लोग WhatsApp करोगे कि सर आज ऑर्गेनिक मैंने इतना किया, मतलब ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट करना, बाय डिफॉल्ट। सर आज मेरा टेस्ट था, सर आज मेरा मैथ्स का प्रैक्टिस ये था, सर आज मेरा फिजिक्स का पढ़ाई कर रहा था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एवरीबडी हैज टू सेंड द वर्क यू हैव डन इन ऑर्गेनिक। तो वर्क क्या होगा? एक तुम लोग रिएक्शंस लिखोगे, जो हम लोगों ने क्लास में किए वो करोगे। Beside that, you will be doing exercise questions from NCERT textbook. Don't do it from our textbook. वो सब bogus questions हैं. Okay, and structures रहेंगे, reactions रहेंगे, वो सब तुम लोग को मुझे भेजना। जो भी करोगे, आधा घंटा 1 घंटे में जो भी करोगे, बट डेली करना है, डेली। उसमें कैसे करना है मैं बताता हूँ। पेज है ना अपना, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। समझो ये अपना पेज है। When you start, okay, you have to put date first. तो यहाँ पे होगा डेट और टाइम। टाइम मतलब कितना घंटा किया। जिसने किसी ने लिखा 2 hours, तो समझ लो उसको मैं फिर 100 बार चीजें लिखने के लिए बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट आस्क्ड टू डू इट फॉर 2 hours. Those who are bored with the chemistry, मैं बता रहा हूँ, they need to minimum 30 minutes करना ही करना है, और maximum कितना करना है? 45 minutes, not more than that. But कैसे करना है? Daily. You are supposed, मतलब जो जो हम लोगों ने क्लास में किया, उस रिएक्शंस को रिवाइज किया, मैकेनिज्म को रिवाइज किया, you send it to me. But every day you will be sending to me. लेट मेरा पूरा इंटरनल मेमोरी भरने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर गोइंग टू सेंड। इज दैट क्लियर? सर मैं तो सीईटी, मैं तो 12th, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एवरीबडी, सब लोग करेंगे ये काम, ठीक है? यस, समझ में आया सबको ना क्या करना है वो? हाँ तो बोलो। यस सर। भालचंद्र? यस सर। हा, आणि ज्या दिवशी येणार नाही त्या दिवशी मी मग बाबांना मेसेज करणार तुमच्या की जरा ऑर्गॅनिकचा होमवर्क सेंड करा। तुम्ही करा, आणि कारण तुमच्या मुलाला वेळ नाहीये त्या मुलीला वेळ नाहीये, समझा ना? चलो अभी नेक्स्ट देखो, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। So N propyl bromide में what we have written? I can write this way also. Yes, केला का तू? पंडलस्कर? सर एकच सेकंड थांबा ना, माझ्या बहिणीला जरा हेल्प करतोय, 2 मिनिटं द्या. तिचा एक्झामचं चालू आहे, तिचा जरा कन्फ्युजन आहे पेपर कसा सेंड करायचा. ओके. Yes. So the beta hydrogen atom is here. This bond comes over here.
and this will be 0. So we have plus KBr plus H2. This is the second example. This is N propyl bromide. This is propene. Third one. Isobutyl chloride. I hope everybody know the structure. Isobutyl chloride. So ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन. यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. ये बॉन्ड इधर आ गया, चला गया. अल्कोहलिक KOH. So we have alkene, so this is nothing but 2-methyl propene. Okay, and the fourth one is tertiary butyl iodide. So structure of tertiary butyl iodide is this. React with alcoholic KOH. So यहाँ पे 1 2 3 3 हाइड्रोजन एटम. ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन. सो हाइड्रोजन. तो यहाँ पे तो SN-E1 मैकेनिज्म है. So the product is alkene plus Ki plus H2. Same ना, 2-methyl propene मिलेगा. Write down this. Sir, बोलना. sir, can you explain again कि E1 and E2 में कैसे differentiate करना है? जनरली E1 और E2 ऐसा है ना, जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिस दिया. अभी यहाँ पे तो हम लोग E1 E2 ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, बट जनरली सिर्फ अल्कोहल यूज किया जाता है. ओके, एक मिनट मैं बताता हूँ. E1 मैकेनिज्म में अगर मेरे पास जो रिएजेंट है वो वीक बेसिस. वीक बेसिस कौन सा है? तो NH3, ये वीक बेस है. ROH अल्कोहल, ये वीक बेस है. सो अगर ये वीक बेसिस में यूज कर रहा हूं ना, तो वहां पे क्या होगा? E1 मैकेनिज्म. E1 मैकेनिज्म में जनरली क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. तो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, then tertiary alkyl halide generally go by E1. Generally it goes by SN1, sorry, E1 mechanic. और E2 में क्या होता है? तो R माइनस मतलब अल्काइल एनायन, NH2 माइनस मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज है, RO माइनस, OH माइनस. जहां पे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो वहां पे क्या होगा? E2 मैकेनिज्म होगा. समझ में आ रहा है? अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं अभी आगे जाके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. ये हो गया इधर वाला पार्ट. Yes, sir. ये एग्जांपल्स हो गए सबके लिख के. यस. Yes, sir. सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट कि E1 कब होता है, SN1 कब होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूं. ये देखो,
reactivity order of, see, a competition between substitution and elimination reaction. Okay, so reactivity order of alkyl halide, even reaction में tertiary is greater than secondary is greater than primary. E2 reaction में भी same thing, tertiary is greater than secondary is greater than primary. SN1 reaction में भी same way, tertiary is greater than secondary is greater than primary. और SN2 reaction में क्या होता है, primary is greater than secondary is greater than tertiary. ठीक है, okay, so E1, E2 and SN1 follows same order for the alkyl halide. SN2 is the reverse one. Now, when I talk about alkyl halides, primary alkyl halides, SN1 or E2, mainly gives substitution reaction unless sterically hindered alkyl halide or sterically hindered base, in which case elimination is favored. मतलब अगर बल्कि बेस है, बल्कि बेस, एग्जांपल बताता हूं, ये देखो, अच्छा हम लोग को ये पता है अमोनिया NH3 ये एक बेस है which is bonded with 3 हाइड्रोजन एटम, बट अगर समझो मैंने NR3 लगा, इसको बोलते हैं टर्शियरी अमोनिया. नाउ दीज 3 ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप, तो ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, और ये क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा. इज दैट क्लियर? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कैन नॉट अंडरगो SN1 और E1 बिकॉज दोनों केस में कार्बोकैटायन बनता है और प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन चल होता है. स्ट्रॉन्ग बेस और बल्की बेस और हाई टेम्परेचर, तो वहां पे ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में बोथ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल. सो स्पेसिफिकली एलिमिनेशन कब होता है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे या बल्कियर बेस. जैसे मैंने बल्कियर बेस जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बल्कियर बेस का एग्जांपल ये है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टर्शियरी अमाइड, टर्शियरी और सेकेंडरी अमाइड, these are bulkier base. और हाई टेम्परेचर, वहां पे क्या होता है, एलिमिनेशन. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 और E1 के हिसाब से बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन हो जाता है. हाई टेम्परेचर ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन. ओके, अगर उसको SN1 फॉलो करता है. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में मेनली SN1 रिएक्शन फॉलो होता है. मेनली क्या फॉलो होता है, SN1 रिएक्शन फॉलो होता है टर्शियरी में. बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शोज व्हाट, SN1. तो इसका मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन होता ही नहीं. यहाँ पे SN1 रिएक्शन होता है, बट अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड. ओके, अभी एग्जांपल देखो, और few things are there. SN2 and E2 is favorable by high concentration of good nucleophile or strong base. SN1 and E1 is favored by low concentration of poor nucleophile or weak base. If an alkyl halide undergo SN2 or SN1 reaction, then SN2 is favored. Then SN2 reaction is favored by high concentration of good nucleophile in presence of polar aprotic solvent, whereas SN1 reaction is favored by low concentration of poor nucleophile in presence of polar protic solvent. तो पोलर, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम लोग को, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक क्या होते हैं. ओके, यस, जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स. ये पॉइंट्स लिख लो.
हाँ कार्तिक, आंसर मिला? हाँ सर, समझा। ये तीनों पॉइंट्स लिख लो, तीनों पॉइंट। यस, हो गया सबका लिख के? हेलो? यस सर। सो ये लिखना, ये भी दिस इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस ही है। ठीक है, ये एलिमिनेशन के लिए हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? Br माइनस अटैक्स ऑन CH2। सेम इज ओवर हियर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट, वीक बेस यूज किया तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एस्टर। Now in this case elimination reaction, but this is according to what? According to Sedgwick rule. Sedgwick rule वही बता रहा है। So the major product is according to the Sedgwick rule. The alkene, highly substituted alkene is obtained as a major product.
So have you done these reactions? हो गया ये? Yes, sir. चलो और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. ये देखो एक एग्जांपल. This is fourth one. Suppose we have 1 bromo, 2,2 dimethyl propane. So the structure is like this way. ऐसा है. Okay. Now this is reacted with either alcoholic KOH और वही अपना सोडियम इथॉक्साइड और पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करो. तो यहाँ पे मतलब वैसे देखा जाए तो इट लुक्स लाइक यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनना चाहिए. बिकॉज देखो ना ये अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन को हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं है ना हाइड्रोजन. बट यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके से होता है एंड दैट इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट. ये गया. सो व्हाट आई हैव अ स्ट्रक्चर. आई विल हैव द स्ट्रक्चर. कार्बोकटायन बनेगा ना यहाँ पे. कार्बोकटायन बनेगा. करेक्ट. अभी ये जो कार्बोकटायन है ये प्राइमरी है तो बिकॉज ऑफ दिस वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा पूरा यहाँ पे. राइट. सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर वी हैव? CH3. CH3. Then we have a CH2 and CH3. Here we have a positive charge. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो चला गया और ये बॉन्ड इधर आ गया -H+. सो सीधा अल्कीन फॉर्म मिला कि नहीं अल्कीन. नाउ दिस रिएक्शन is also even mechanism. Elimination unimolecular even mechanism. अच्छा, again I am telling you those who are emphasizing on 12th and CET ये even E2 याद रखने की जरूरत नहीं है बट तुम लोग को प्रोडक्ट क्या बनता है वो पता होना जरूरी है. ओके. ये एग्जांपल जो मैं करवा ये सबके लिए जेई मेन सीईटी 12th स्टैंडर्ड. ओके. बेसिक कंसेप्ट चाहिए, फंडामेंटल चाहिए. ओके. सो ये अगर हो गया तो तुम लोग ये करो.
चलो लिखो, प्रोडक्ट लिखो। सो ये वीक में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। So, अभी एरोमेटिक हलाइड्स बचा है, दैट्स इट, एंड द यूजर्स। यस, क्या हुआ? कोई आंसर नहीं बताया यार आजकल। करते हो तुम लोग या कि मुझे ही करना है? Nobody is telling me the answer. कार्तिक नहीं आ रहा है क्या? हेलो कार्तिक, ट्राइंग। देखो ना, बेसिक चीजों पे ध्यान दो यार, फंडामेंटल्स। इसका मतलब यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द थिंग एट होम। ये देखो, ये I माइनस यहाँ पे गया, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है? तो उसको मैं और स्टेबलाइज कैसे कर सकता हूँ? बाय शिफ्टिंग दिस मिथाइल ग्रुप हियर। देखो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी चेक करो ना, कार्बन के वैलेंसी में क्या क्या है यहाँ पे। ये कार्बन है, ये कार्बन है,
ये आयोडीन है, तो और एक चौथा वाला क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा ना। तो ये I- चला गया और फिर ये मिथाइल ग्रुप यहां से यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट। 1-2 शिफ्ट बोलते हैं उसको हम लोग, सो दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अ स्टेबल कार्बोकेटायन। ये बन गया टर्शियरी, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। सो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये है ना मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन का मतलब क्या होता है, यही होता है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर मला नाही कळलं. व्हेरी गुड, परत एकदा सांग. सोहम आठवले, अरे झोपले का सोहम, आठवले पण चेहरा नाही आलाय का. So this was E2, right? नो नो, दिस इज E1. कार्बोकटायन बना मतलब E1. सोहम आठवले पण एब्सेंट है आज. Sir, but strong base use हो रहा है ना. हाँ, सो व्हाट, चलेगा ना. Okay. So, जब भी there is a formation of carbocation, it goes via E1 mechanism. अच्छा, सोम आठवले पण गायब है, 3 लोग एब्सेंट है. हाँ, यस, once again I am repeating this. होगा. सर मला ते शिफ्टिंग कळलं नाही नीट. तेच सांग. सी आहे, पहिली स्टेप आपण अशी करूया. सपोज दिस I- is removed. So this is the methyl group and here we have a positive charge. Is that okay? हे समजलं? येस सर. Now this is what secondary carbocation. Yes or no? येस. Now if there is a possibility of formation of more stable carbocation, then 1-2 shifting is possible. What do you mean by 1-2 shifting? So this is a methyl group, na? This is also methyl group. So one of the methyl group along with these electrons shift on this carbon atom. You understand now? ओके. So that the product which we are getting, Som Saman, good morning. Good morning, So sir. methyl group comes over here. Swapnil. Therefore, here, since methyl is going along with its electron, so this carbon becomes electron deficient, and therefore here we have a positive charge. ये समझना. येस. This is tertiary carbocation. This is what? Tertiary carbocation. Now here we have a hydrogen. It is there, na? येस सर. So next step, there is a elimination of hydrogen. So the ultimate product we are getting is this. What is the name of this compound? 1,2 dimethyl cyclohexene or cyclohexone. तर पण तिथून हायड्रोजन गेला तर तिथे नेगेटिव्ह चार्ज नाही ना. मग तोच ना, I mean, हा नाही गेला म्हणजे H+ गेला ना. सो व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, हा जो हे जे इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ते इथे येत आहे ना. हा. म्हणजे इथे येतं त्या कार्बनच्या व्हॅलेन्सी 1 2 3 4 1 2 3 4. अरे हा, राईट. समजलं. गुड.
So will you practice these reactions? Whether you have to practice. Yes, sir. I will share these notes, halogen derivatives notes with you. So those who are giving 12th standard, see, compare these notes with the 12th standard textbook. Those who are giving only 12th standard and CET, उनके लिए बोल रहा हूँ. बाकी लोगों के लिए सब कुछ करना है. जो भी कुछ कंटेंट है उसमें वो दे. और अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो भी मुझे बता देना. So that I will rectify it. इसका प्रिंट का तुम लोग को पेपर 1 का नोट्स मिलेगा केमिस्ट्री 1 का 12th स्टैंडर्ड के लिए. इसमें टेक्स्ट बुक भी मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है उसमें. ऑलवेज पहले कभी भी तुम लोग पढ़ाई करोगे ना, फर्स्ट रेफर टेक्स्ट बुक. जब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करते हो, when you are talking about JEE mains and CET, refer my notes blindly and then you start solving MCQ. Okay, I'm planning to give you some MCQs in the class also. मतलब halogen derivative का MCQs हम लोग साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. दैट इज नथिंग बट, ये तो सबको आता है ना तुम लोग. आज मैं ये शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ. Now let us go for the haloarenes now. Haloarenes का मतलब होता है, arenes मतलब aromatic compound. Aromatic compounds का मतलब होता है when one or more hydrogen atoms of benzene are replaced by halogen, then the compound form are called as haloarenes. Okay, so here I am writing the definition for the haloarenes. One or more hydrogen atom or atoms of benzene are replaced by halogen. The compound obtained are called as haloarene. तो बेसिक आइडिया बता देता हूं मैं. ये समझो बेंजीन है. So you can write a structure of benzene like this way. पता है, तुम्हें बताता नहीं तुम लोगों को. यहाँ पे हाइड्रोजन, this is replaced by halogen. ये हो गया हैलोबेंजीन. तो बोलते हैं हैलोबेंजीन. इसका नॉमेनक्लेचर सिंपल है. See, halo group जो होता है ना, it is always present as a substituent. Okay, तो उसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना वो सबसे कम होता है. हैलोजन का, अल्काइल ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप का. ओके, एग्जांपल अभी ये तो सिंपल नाम है. दिस इज नथिंग बट क्लोरोबेंजीन. Then we have bromobenzene. Iodobenzene and so on. Then ClCl.
IUPAC नेम है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर समझो मैंने ऐसे लिखा है, Cl यहाँ पे है और Br यहाँ पे, तो दोनों हैलोजन से। सो इन दिस केस यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो ब्रोमीन पहले आता है 1 2 3 नंबर करने के लिए भी, एंड व्हाइल राइटिंग ऑल्सो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा भी विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन रहेगा। तो क्या होगा ये मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। देखो कॉमन में कैसे नाम लिखा, देखो मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? तो प्लीज जरा इसका नाम लिख लो, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Fancy, tell me the name of this compound. आर्यन जी लिखो। Yes. अरे मानसी 1 क्लोरो 2 आयोड 2 कसं असेल, नंबर कसा केला मानसी? हा करेक्ट. चुकून की दाबली गेली सर. हा हा ओके 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 मानसी. चलो हो गया सबका ये लिख के? हाँ, तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन और पैरा आयोडो क्लोरो बेंजीन. ठीक है, पैरा आयोडो क्लोरो बेंजीन. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. ये है नॉमेनक्लेचर के बारे में, डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे तो, एंड ऐसे, तो these are the nomenclature. Now if there is a methyl group, तो मिथाइल ग्रुप, और अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, that is called the toluene ना. Hence the name is given with respect to मतलब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोब्रोमोटोलिन. कॉमन नेम है. IUPAC में देखो क्या लिखा है, 2 ब्रोमोटोलिन और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन. दिस इज द मोर करेक्ट नेम. 1 bromo 2 methyl benzene is a more correct name because both are substituent. So when both are substituent मतलब alkyl group, bromo, nitro, ये substituents है जो कभी एंड में नहीं आते, मतलब बेंजीन के एंड में नहीं आते. ओके, इसलिए 1 ब्रोमो 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे. ठीक है,
So ये है classification. Preparation. Okay. So quickly we discuss a few examples and then next lecture में हम लोग इसको आगे continue करेंगे. देखो जरा. How will मतलब ये हम लोगों ने reaction किया है halogenation. Benzene when react with chlorine in presence of FeCl3. Benzene when react with chlorine in presence of FeCl3. मतलब अगर catalyst use तुम लोग कर रहे हो at 310 to 320 Kelvin, ये देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, that hydrogen is replaced by chlorine, so that we are getting what? Chlorobenzene. अभी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. I will read this part. The replacement of one or more halogen atoms of arenes by one or more halogen atoms is called as a halogenation. These reactions are carried out in dark at ordinary temperature in the presence of Lewis acid catalysts such as iron or ferric or aluminium halide. These reactions are called electrophilic substitution reactions of arenes. The Lewis acid acts as catalyst and its function is to carry the halogen to the aromatic hydrocarbon and is so called halogen carrier. Okay. So पहले मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है हैलोजनेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है? हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन. सर ये रिएक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग. हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन. सो स्टेप 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया है. इलेक्ट्रोफाइल. अभी इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होगा? FeCl3 when react with Cl and Cl. So there is a heterolytic fission of bond because of FeCl3, so that we have FeCl4 minus, and because of this Cl plus हो गया. This is your electrophile. ठीक है अपना electrophile. Now step 2 में there is an attack of electrophile on benzene ring. Attack of electrophile on benzene ring or aromatic center. So ये कैसे होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन एक होता है Cl+. So benzene is a electron rich center. बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ना. तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया कार्बन. सब लोग देख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज हो गया. Now this Cl plus attack on this carbon atom. So what will be the structure? The structure is like this way. यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड. यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. क्यों? बिकॉज देखो ये बॉन्ड है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया. सो नाउ आई हैव H and I have Cl. Now this is stabilized by resonance. Okay, तो ये बॉन्ड इधर आ गया. Just I am showing you the resonating structure. So what will be the structure we have? Here we have a H, here we have a Cl. यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. Here we have a positive charge. ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया. So what will be the structure? So मतलब we are, why there is a formation of carbocation, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, जब भी कार्बोकैटायन बनता है theoretically you should explain it why it is formed, and that can be explained on the basis of stability. So ये बन गया. अभी स्टेप 3 देखो. Resonating structure.
These are what? Resonating structure. Last step में there is a attack of, मतलब ये जो अपना कार्बोकटायन बनाना, ये है कार्बोकटायन. Here we have a Cl, here we have a positive charge. यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी आएगा डबल बॉन्ड. नाउ FeCl4 माइनस, ये क्या करता है, इसमें से प्रोटॉन खींच लेता है अपनी तरफ, तो ये H इधर आ गया, सो बॉन्ड बना देगा. एंड नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस वे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेंजीन प्लस HCl प्लस FeCl3. अंडरस्टूड? Is that clear? Oh, I'm sorry. क्लोरोबेंजीन आना चाहिए, क्लोरीन आएगा ना यहाँ पे. So here we have what? Chlorobenzene. Write down the reaction. Here we stop for today. Interesting चीज ये है, अगर मैंने यहाँ पे सनलाइट यूज किया ना, तो क्लोरीन गेट एडेड. जाने दो, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता तुम लोग को. You first of all write down this part. So here we stop for today. कल के लेक्चर में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे. Anybody having any doubt over here? No sir. लिख के हो गया ये? Everybody done? Yes sir. चलो फिर बाय बाय. तो आज रात तक मुझे जो भी तुम लोग ऑर्गेनिक का काम करोगे, जो भी शुरुआत से करो, हैलोजन डेरिवेटिव का चैप्टर जो शुरुआत है उधर से करो. आई वांट व्हाट यू हैव डन, राइटिंग में, मतलब जो किया है वो मुझे, सर मैंने ये किया, आई डोंट वांट दीस सेंटेंसेस, जो किया वो मुझे प्रूफ चाहिए. इज दैट क्लियर? आधा, नॉट मोर देन 45 मिनट्स. हाँ, मैं तो बोलता हूँ शुरुआत हाफ एन आवर से करो. You start with half an hour and you have to send it to me. आज रात तक वो मिलना चाहिए. Okay, चलो बाय बाय.